درمیان آج خداوند کی سورما پاسٹر سشما شہریار موجود ہیں، سو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہوں گی اور مسز عارف جی کھوکر صاحبہ جو ہے وہ ان کو ہاتھ پہنائیں گی۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج ہم پھر گریس ٹیلی ویژن پر پریئر ٹائم سیگمنٹ میں خداوند کی حضوری میں موجود ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور پورے امید ہیں کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے، پرستش کے وسیلہ سے جو ہے یقیناً ویورز کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ سو ابھی ہمارے درمیان پاسٹر سشما شہریار صاحبہ موجود ہیں، سو خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے استعمال کر رہا ہے اور ہم ان کو پریئر ٹائم سیگمنٹ میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور یقیناً آج کلام کے وسیلہ سے ویورز برکت پائیں گے، اور اسی طرح ہمارے درمیان پاسٹر لوبن صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کو بھی ہم اپنے پریئر ٹائم سیگمنٹ میں جو ہے وہ ویلکم کریں گے۔ اور اسی طرح خداوند کے پرستار ارشد توفیل صاحب ہیں جو طبلہ پہ جو ہے وہ سنگت کرتے ہیں، خداوند نے ان کو بڑی برکت دے رکھی ہے۔ شان جو ہے توفیل صاحب یہ بھی بیمن آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور خداوند کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے جگہ بجگہ استعمال کر رہا ہے، اور اسی طرح سسٹر امبر کے لیے اور بھائی سنی کے لیے بھی جو ہے وہ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج یہ ہمارے درمیان اس پریئر ٹائم سیگمنٹ میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح میں گریس ٹیلی ویژن کی جو ٹیم ہے، ایلڈر شفیق صاحب ہیں، دلشاد عارف اور سجاور یعقوب اور عامر مشتاق صاحب، اور اسی طرح ایلڈر اکبر جان صاحب، ایلڈر لیاقت صاحب، تو اس ساری ٹیم کو بھی میں جو ہے وہ اس پریئر ٹائم سیگمنٹ میں ویلکم کرتا ہوں، اور ہم سب جھکیں گے سارے پریئر ٹائم سیگمنٹ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے اور خداوند سے دعا کریں گے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے، پرستش کے وسیلہ سے خداوند ہمیں روحانی برکات سے جو ہے وہ مالا مال کریں۔ ہمارے درمیان پاسٹر لوبن صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ دعا میں رہتے ہیں۔ رب الفاظ خدا زندہ خدا، تو جو رحیم ہے، تو جو رحم کرنے والا ہے، تو جو برکت دینے والا ہے، تو جو عظیم خدا ہے، تو جو برکت دیتا ہے۔ اے خدا پاک خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کہ سارا دن تو نے اپنی حفاظت پناہ میں رکھا، اور خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہماری زندگیوں میں ایک سہانی شام بخشی اور یہ موقع بخشا کہ اس وقت ہم تیری حضوری میں جھک سکیں، تیرے نام کی مدح سرائی کر سکیں، تیرے نام کی حمد و ستائش کر سکیں۔ اے خدا پاک، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا ہم تیرے آگے منت کرتے ہیں عبادت کے شروع سے آخر تک، اور جتنی بھی گیتوں زبوروں کے وسیلہ سے تیری پرستش کی جائے خود پسند آئے، اور خدا ہم دعا گو ہوں کہ جتنی دیر تک تیرے پرستار تیری پرستش کرتے رہیں، تیرا آسمان کھلا رہے اور خدا ہم تیرے لوگ برکت پر برکت پاتے رہیں۔ اور خدا ہم تیرے کی منت کرتا ہوں جس تیری خادمہ کے پاس تیری زندہ آواز ہے، اس تیری خادمہ کو تیرے سپورٹ کرتا ہوں، تیرے زخمی کیلوں والے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں۔ اپنی بیٹی کو زور بخش دینا، اپنی بیٹی کو حکمت عقل دانائی سے منور کر دینا، اور خدا وہ کلام بخش دینا جو تو اپنے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ آج خدا تیری بیٹی نہ بولے بلکہ تیرا پاک روح اس میں ہو کر کلام کرے، اور خدا ہم تیرے آگے منت کرتے ہیں کہ آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت کا سبب ٹھہرے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگ تبدیل ہوں، اپنی زندگیاں بدلیں۔ خدا آج کا کلام ہمارے دلوں میں گھر کرے، ایک جڑ پکڑے تناور درخت بنے، اور خدا بہت سارے لوگ خدا اس ناسی توبہ کریں اور اپنی غلطیوں گناہوں کا اقرار کریں، اور خدا مسیح میں زندگی بسر کریں، اور تیرے حکموں کے مطابق، تیرے آئین کے مطابق خدا اپنی زندگیوں کو بسر کرے۔ اور خدا تیرے آگے منت کرتا ہوں ماسٹر عارف کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے، تیرے خدا گریس چینل کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں تیرے خدا، اور خدا چاہتا ہوں کہ خدا یہ گریس چینل بلندیوں پر جائے، اور تیرے خدا بہت سارے لوگوں کو خدا اس ناسی تیرے کلام کے موافق زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اور خدا تیرے آگے منت کرتا ہوں تو ان کو اور زیادہ برکت دینا، اور خدا اس ناسی جہاں جہاں بھی یہ تیرا کلام تیرے اس چینل کے وسیلہ سے پہنچاتے ہیں تیرے خدا،
جتنے بھی لوگ اس کلام کو سنیں اور خدا وہ لوگ برکت پائیں اور کلام کی وسیلہ سے ان کے گھرانوں میں سے بے روزگاری جاتی رہے، بیماری جاتی رہے اور خدا کے لوگ شفا پائیں، برکت پر برکت پائیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ پریئر ٹائم سیگمنٹ میں ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم ملک پاکستان میں بسنے والی تمام کلیسیاؤں کو خدا کی حضوری میں رکھیں گے، اور خاص طور پہ جو ہاسپٹلز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان کو خدا کی حضوری میں رکھیں گے کہ خدا اپنا رحم، اپنا فضل دے دے، اور جتنے بھی ادارے قومیائے گئے ہیں خدا اپنا رحم، اپنا فضل دے لے تاکہ وہ مشنری اداروں کے ہینڈ اوور ہو سکیں اور خدا کا نام اور جلال جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ اور خاص طور پہ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے وکٹوریہ ہاسپٹل جو بہاولپور میں ہے اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کرنے کا سوچا گیا، لیکن ہم نے اپنی رہنمائی کی، ہم نے دعاؤں میں رکھا، اور یقیناً وہ سارا پلان منصوبہ جو تھا وہ تبدیل ہو کر رہ گیا، اور اس کا نام اسی طرح وکٹوریہ ہاسپٹل رہا۔ اس کے لیے بھی ہم شکر گزاری کریں گے، اور خاص طور پہ رنگمہ اسکول کے لیے اور بھی جتنے ادارے ابھی تک مشنز کے پاس نہیں آئے ان سب کے لیے دعا کریں گے۔ سو ہمارے درمیان ایلڈر لیاقت صاحب موجود ہیں، وہ اس دعا میں رہنمائی کریں۔ کے نام میں آمین۔ زمین و آسمان کے خالق و مالک آپ خداوند کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارا خداوند ہے، آپ خداوند کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تم نے ہمیں سب کو جمع کیا۔ ہم خداوند کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں گریس چرچ کے سلسلے سے آپ خداوند تیرے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں۔ آپ خداوند اداروں کی دعا کرتے ہیں جو ادارے خدا تیرے نام کے سلسلے سے چلتے ہیں، ان مسیحی اداروں کے لیے، مسیحی ہاسپٹلوں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ جتنے جہاں جہاں تیرے لوگ رہتے ہیں پاک خدا تیرے نام کو عزت و جلال دیتی ہیں، وہاں خدا تیرا روح قدس چاہے وہ تیرے لوگ نجات پا سکتے ہیں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ جو لوگ پاک خدا پسے ہوئے ہیں، اے خداوند جہاں جہاں کے لوگ کچلے جاتے ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، اے پاک خدا تم لوگوں کو بحال کر، پورا اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ اے پاک خدا ملک پاکستان کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ملک پاکستان میں تیرے لوگ جو خادم دین ہیں پاک خدا ان کو یاد کرتے ہیں، اپنے خادموں کو برکت دے، ہر طرح کی وبا سے، پریشانی سے بچا کر محفوظ رکھنا۔ اے پاک خدا ہم تیری شکر گزاری کر رہے ہیں گریٹ چیلنج کے سلسلے سے خدا ہم تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ جہاں جہاں بھی آج تیری آواز پہنچے، تیرے لوگ نجات پائیں، تیرے لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پا سکیں۔ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پرستاروں کے لیے جو تیرے نام کے وسیلے سے پرستی کرتے ہیں۔ اے پاک خدا یسوع بادشاہ پرستی کے وسیلے سے پاک روح اترتا ہے، تیرے روح قدس کے وسیلے سے خدا تیرے لوگ نجات پاتے ہیں۔ آج خدا یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے اور پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ آج اپنے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو، اس کلیسیا کو، ملک پاکستان کو، ہم سب کو برکت دینا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم خدا کی پرستش میں آگے بڑھیں گے اور خدا کی مدح سرائی کریں گے، اور یقیناً
آج کی مدح سرائی کے وسیلہ سے خداوند ہمیں برکت دے گا اور اس پریئر ٹائم سیگمنٹ میں خداوند کا ابر جو ہے وہ ٹھہرا رہے گا. تو ابھی ہم سب مل کر کوائر کے ساتھ خداوند کی مدح سرائی کریں گے. خداوند کے پاک کلام میں یوں مرغوم ہے، اللہ حکومتوں کے تابع رہو.
تو ہم اس ملک پاکستان کے لیے اور اس گورنمنٹ کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں گے کہ خداوند انہیں ایسی حکمت دانائی دے تاکہ جو بھی پالیسیاں اس ملک میں ترتیب ہوں اور جو بھی قوانین نافذ ہوں وہ خداوند کی طرف سے ہوں، اور انہیں ایسی سمجھ بوجھ خداوند دے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ خداوند کے نام میں، جلال میں، قدرت میں جو ہے وہ آگے بڑھے، اور خداوند جو ہے وہ اس ملک پاکستان کی جو ہے وہ حفاظت کرے۔ ابھی ہم سب جھکیں گے، تو میں درخواست کرتا ہوں دلشاد عارف سے کہ وہ اس دعا میں رہنمائی کرے۔ جو ہے جو آنے والا ہے ہمارے عزیز ابدی باپ پیارے خداوند، دل اور دل کی گہرائیوں سے لاکھوں بار شکر ادا کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم تیرا پاک نام لیں پیارے خداوند، زندوں کی زمین پر ہمیں زندہ رکھا پیارے خداوند کہ ہم تیری شکر گزاری کر جیسے جائے ان کے ساتھ ہونا، ان کی رہنمائی کرنا ہے پیارے خداوند، پرستش میں ہمارے ساتھ ہونا پیارے خداوند، ہماری رہنمائی کرنا ہے پیارے خداوند، جہاں ہم تیرا پاک کلام سنے پیارے خداوند، پاک کلام میں ہمارے ساتھ ہونا پیارے خداوند، اپنی خادمہ کو تھام کے رکھنا پیارے خداوند، اور میں دعا کرتی ہوں پاکستان کے اداروں کے لیے پیارے خداوند انہیں برکت بخشنا پیارے خداوند تاکہ یہ اچھی طریقے سے اپنا کام سارا انجام دے سکے اور اپنی حکومت کو سنبھال سکے پیارے خداوند۔ تمام کالجز کے لیے دعا کرتے ہیں پیارے خداوند، اسی اداروں کے لیے دعا کرتی ہوں پیارے خداوند، سب کے ساتھ ہونا، سب کی رہنمائی کرنا پیارے خداوند، ان کی حفاظت کرنا پیارے خداوند، عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہونا پیارے خداوند ہوں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ یہ وقت یقیناً خداوند کا تب جو ہے وہ لگ چکا ہے، اور ہماری عبادت میں 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ میں ہم دعا کرتے ہیں، خداوند کے آگے اپنی عرضیں منتیں رکھتے ہیں، اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم خداوند کی مدح سرائی کرتے ہیں، اور اس مدح سرائی کے دوران خداوند ہماری جماعت میں موجود ہوتا ہے، اور پھر خداوند ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنے بندہ کے وسیلہ سے، بندی کے وسیلہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خداوند کی مدح سرائی کریں گے۔ ہمارے درمیان جو ہے وہ بھائی عامر مشتاق کا موجود ہیں، تو ہم ان کے ساتھ خداوند کی مدح سرائی
खुदाम का जिंदा पाक कलाम जो है वो सुने और यकीनन आज के कलाम के वसीला से युवल जो है वो बरकत पाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि खुदाम का कलाम जो आईना की मानिंद है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ खुदाम का कलाम जो है वो तलवार की मानिंद है, खुदाम का कलाम जो है वो हथौड़े की मानिंद है। जब ये बरसता है तो जिंदगियों में से तमाम किस्म के झूठ, मुनाफिकत परस्ती, गुनाह, खता की चट्टानें जो हैं वो चकनाचूर हो जाती हैं। जब ये तलवार की मानिंद चलता है तो बंद बंद बूदे बूदे को चीर कर गुजर जाता है, और जब ये आग की मानिंद बरसता है तो यकीनन जिंदगियों से तमाम किस्म की नाराज़गी को, नापाकी को जलाकर भस्म कर देता है। सो अभी हम सब झुकेंगे, कलाम की तैयारी के लिए दुआ करेंगे। हमारे दरमियान ग्रेस टेलीविजन से एल्डर शमून अकबर जान साहब मौजूद हैं, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोटिवेट है। तुम अच्छा करते हो जिस पर गौर करते हो, क्योंकि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह को रोशनी बख्शता है। सभी लोग अपने आप को तैयार करिए। आज शाम खुदा बोलने को है, खुदा कलाम करने को है, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने दो बार सुना कि कुदरत खुदा में। आज शाम खुदा अपने जलाल को जाहिर करने कलाम में लिखा है कि मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर होगी। खुदा हम कलाम होने को है। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। अब शाम खुदा जब तेरे कलाम को सुनी तो अर्थ हर तरह के इब्लीस के बंधन टूट जाएंगे, जुए टूटे। खुदा तेरा पाक कसरत के साथ काम करे। अच्छा तू एक एक की जरूरत को पूरा करना खुदा। अच्छा मौजूदात हो खुदा खुदा जितने खुदा कलाम को सुने खुदा एक एक जिंदगी में खुदा तू काम करे खुदा। तेरी खात्मा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। तेरी खात्मा के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ खुदा जितने लोग सुने बरकत को हासिल करें खुदा। तो अपना कलाम नाज़िल करता और अपने लोगों को शिफा देता है। अच्छा जब तेरा कलाम नाज़िल हो तो खुदा बंधन टूटे खुदा। जिसका तूने कौम बनी को पहले गुलज़म से तू निकालने की कुदरत रखता है, दानियल को शेरों की मान में से निकालने की कुदरत रखता है। अच्छा तेरी कुदरत बड़े जोर के साथ काम करे खुदा। और जिस तरह तूने हिजकिय्याह को कहा कि इन सूखी बंदों पर नबूवत कर। अच्छा खुदा जब तेरी बंदी कलाम को डिलीवर करे एक एक का खुदा जिंदगी तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाए खुदा। एक एक जिंदगी से राह हो खुदा। और खुदा तेरा कलाम खुदा लोगों में खुदा जब डिलीवर हो तो तमाम लिवर्स, तमाम सुनने वाले बरकत को हासिल करें, शिफा को हासिल करें। अच्छा मौजूदात हो खुदा। एक एक जिंदगी यीशु के मनजी होने का इकरार करे खुदा। जिस तरह बंदा सैमुअल करता है खुदा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। आज जब तेरी आवाज को सुने तो खुदा बरकत को हासिल करे। और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में अपनी बंदी को ब्लेस कर खुदा। अपनी बंदी को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। अच्छा तू बढ़े और हम घटे और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। एक ही को छूना, एक ही को बरकत देना खुदा। तेरा कलाम खुदा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। और खुदा मुल्क पाकिस्तान में जितने लोग सुने खुदा इस कलाम के वसीले से बरकत को हासिल करें और तेरी शुक्रगुजारी करें। अपनी बंदी को बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। उसी के नाम से
जोरदार तालियां। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर सुषमा शहरयार साहिबा, जिनको खुदाम ने नौजवानी के अयाम में ही बरकत दे रखी है, खुदाम अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। सो व्यूवर, यकीनन आज हम कलाम के वसीला से जो है वो बरकत पाएंगे। सो आप सबकी तालियों की गूंज में दावत देता हूँ। पास्टर सुषमा शहरयार साहिबा तशरीफ लाएंगी और खुदाम का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगी। वियतनाम में आप सब देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने खुदावंद का, अपने मुनज्जी का, निजात हिंदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ये शर्फ अदा किया कि मैं खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को आप सबों के सामने बयान कर सकूँ। और मेरा ईमान है कि आप सब सुनेंगे तो खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। इसके बाद मैं ग्रेस टीवी और इनके फाउंडर और मोस्ट रिस्पेक्टेबल टीचर आरजुएट कोकर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया ताकि हम खुदावंद के कलाम की तबलीग कर सकें। खुदावंद इनको और इनके टीवी को बरकत पर बरकत दे ताकि ये इसी तरह खुदावंद के जलाल में और खुदावंद की बुनियादी करते रहें, ताकि हर एक जो खुदा के कलाम को सुने वो इनके वसीला से बरकत को पाए। और इसके बाद मैं अपने वालिद भगत सदीक साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि उनकी ज़ेर निगरानी, उनकी रूहानी परवरिश की वजह से खुदावंद ने मुझे ब्लेसिंग दी है ताकि मैं नौजवानी की उम्र में खुदावंद के साथ लिपटी रहूं और खुदावंद के कलाम की तबलीग कर सकूं। ये मेरे वालिद की बहुत बड़ी मेहनत और जदोजहद है मेरे साथ। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे और खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि आज के दौर में हर इंसान जो है वो मुश्किलात और परेशानी का शिकार है। कुछ इंसान जो है वो बीमारी में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपनी औलाद के वसीला से परेशान हैं, क्योंकि उनका ईमान है कि उनकी औलाद जो है वो नाफरमान है, माँ बाप से दूर है, खुदावंद से दूर है। इस वजह से वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में परेशानी का शिकार रहते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो कारोबार की रुकावट में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। यानी हर इंसान जो है वो किसी ना किसी मुश्किलात में इस कदर फंसा हुआ है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, उसकी ज़िंदगी में परेशानी के अलावा और कुछ नहीं। अगर किसी इंसान के पास दौलत नहीं, पैसा नहीं, तो वो भी परेशान है। अगर किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी सुकून नहीं, वो बीमारी में मुब्तला है, वो किसी और परेशानी में, कारोबार की रुकावट में इस कदर उलझा हुआ है कि उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून नहीं है। आज हमने बाइबल मुकद्दस में से इस बात को सीखना है कि आया हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं तो क्यों हैं? अगर हम गुर्बत का शिकार हैं तो क्यों हैं? अगर बीमारियां हमसे लिपटी हुई हैं तो आखिर क्यों हैं? और अगर हम बदरूहों के चुंगल में फंसे हुए हैं तो आखिर क्यों हैं? और अगर ये बीमारियां आती हैं तो किस वजह से आती हैं? और इन बीमारियों को, इन गुर्बत को हम किस तरह दूर कर सकते हैं? हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से मुकद्दस रसूलों के अमाल 3 बाब और उसकी 19 आयत का जब मुतालिया करते हैं तो खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, बस तौबा करो और रज्जू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इसी तरह खुदावंद के हजूर से ताज़गी के दिन आए। आमीन। हमने बहुत अच्छी खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से आयत को सुना जो हमारे ईमान को मजबूत करती और हमें ये राह की तालीम देती है कि हमें किस राह पर चलना है। अगर हमारी ज़िंदगी में ताज़गी आएगी तो किस तरह आएगी? उसमें सबसे पहला जो हमने लफ्ज़ सीखा, बस तौबा करो। तौबा हमें क्यों करने की ज़रूरत है? तौबा की रीज़न क्या है? और अगर तौबा नहीं करते तो उसकी वजह से हम किस मुश्किलात में शिकार हो सकते हैं, ताकि हजूरी से बाहर रह सकते हैं। तौबा ना करने की वजह से हम खुदा के
हाउस में भी नहीं जा सकते, हम खुदा के बेटे और बेटियां नहीं बन सकते, हमारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता, हमारी जिंदगी में इत्मीनान नहीं आ सकता, इसलिए कि हम गुनाह में हैं। और गुनाह जो है ये सबसे पहले मौत को लेकर आता है। जब मौत आती है, जुदाई आती है और इसके साथ गुर्बत आती है, गुनाह के साथ बीमारी आती है, गुनाह के साथ कमजोरी आती है, गुनाह के साथ बहुत सारी ऐसी वबा जो है जो मुल्क की भी हो सकती है, जो हमारे खानदानों में भी हो सकती है और हमारी जाती जिंदगी में भी हो सकती है। आज हमने अपनी जिंदगी में गौर करनी है कि हमारी जिंदगी में आया ऐसा कौन सा गुनाह है जिसके वसीला से मेरी जिंदगी जो है वो खुदा से दूर हो चुकी है, मैं खुदा के नजदीक नहीं जा रहा। दुआ करना सब कुछ नहीं है, दुआ करना सब कुछ नहीं है। इसलिए अगर हम सिर्फ दुआ करते हैं और गुनाह को नहीं छोड़ते, गुनाह हमारी जिंदगी में है, हम झूठ फरेब दबे के साथ अपनी रोजी कमाते हैं, तो आया ये हमारे लिए फायदेमंद है? ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं, बल्कि हमारे लिए जानलेवा है। इसलिए कि हम सिर्फ जस्ट अपनी औलाद को पालने के लिए, पोसने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल करते हैं, जिसमें हम अपनी जान का नुकसान कर रहे हैं। हम बेफायदा जो है वो अपने बच्चों को बुलंदियों पर लेके जाने के लिए, सरफराजी पर लेके जाने के लिए, उनकी अच्छी तालीम के लिए खुद अपनी जान के गुनाहगार हो रहे हैं। हम खुदा से दूर हो रहे हैं, हम खुदा की कुर्बत में नहीं आ रहे, इसलिए कि हमारी जिंदगी में गुनाह है। दुआ करने से खुदा राजी नहीं होता, बल्कि गुनाह छोड़ने से, हर वो खुदा के हुक्म को मानने से, मुकद्दस मूसा की मार्फत खुदा ने जो पैगाम इंसान के लिए जो तबलीग की कि तुमने झूठ नहीं बोलना, तुमने चोरी नहीं करनी, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, सब्त के दिन को पाक मानना है, गैर मबूदों की इबादत नहीं करनी, उसमें ज़ना नहीं करना। आज सबसे बड़ी जो रीजन है गुनाह की वो झूठ है। हम झूठ को छोड़ नहीं रहे, और जब झूठ को नहीं छोड़ रहे तो हमारी रोटी और पानी में बरकत नहीं हो सकती, हमारे घरों में बरकत नहीं हो सकती, बीमारियां हमारे साथ लिपटी रहेंगी। जितनी मर्जी हम अपनी आमदनी को बढ़ा लें, मेहनत कर लें, स्ट्रगल कर लें, 8 घंटे के बजाय हम 16 घंटे भी अपनी मेहनत करेंगे, लेकिन उसमें बरकत जो है खुदा की नहीं मिलती। हमारे पास आमदनी जो है आज के दौर में 50,000, 60,000, 30,000 के करीब है, लेकिन हम एक अफराद को भी पाल नहीं सकते, इसलिए कि खुदावंद की बरकत जो है वो हमारे दरमियान नहीं है। खुदावंद के वादे हैं कि तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तुम्हारे रोटी और पानी में बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा, ना तेरी कोई इसकात रहेगा, ना कोई बाँझ रहेगी, बल्कि तू जमीन पर अपनी उम्र को पूरा करेगा। ये सब तब होगा जब हमारी जिंदगी में गुनाह नहीं होगा, जब हमारी जिंदगी में झूठ नहीं होगा, जब हमारी जिंदगी में फरेब नहीं होगा, जब हमारी जिंदगी में धोखाधड़ी नहीं होगी, जब हम ईमानदारी के साथ खुदावंद के साथ चलेंगे, जब ईमानदारी के साथ उसकी इबादत करेंगे। ये नहीं होगा कि हम उसकी इबादत भी करते जाएं, उसकी प्रस्तिश भी करें, उसके कलाम को भी सुने, सुनाएं भी, मगर अपने दिल में हसद को, गुस्से को, तफरीके को, जुदाई को, जो बातें जिस्मानी है और खुदा से दूर कर देती हैं, उनको अपनी जिंदगी में रखेंगे, तो ये इबादत जो है ये हमारे लिए बेसूद रहेगी, इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, इसमें हमारे घरों में भी बरकत नहीं होगी, हमारी आमदनी ज्यादा होने के बावजूद हमारे अखराजात पूरे नहीं होंगे, कभी हमारा बिल रह जाएगा, कभी हमारी घर की कोई और जरूरत जो है वो रह जाएगी, हम मुकम्मल तौर पर अपनी लाइफ को कंप्लीटली नहीं चला सकेंगे। इसको चलाने के लिए जब हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से अस्तिष्टम की किताब 28 बाब का पूरा मुतालिया करते हैं, तो उसमें खुदावंद हमसे कुछ वादे करता है, और वो वादे, उसके वादे जो हैं वो सच्चे हैं, वो बरहक है, वो ला तब्दील है। वो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो है ये हमें तब्दील कर देता है, ये उम्मतों को तब्दील करता है, ये घरानों को तब्दील करता है, ये मुल्कों को तब्दील करता है, और खुद तब्दील नहीं होता, और जो उसका वादा अटल है वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। और उसका ये वादा है कि तुम मेरी इबादत करना, जान फिश
कि अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। हमें हमारे बहन भाइयों से सरफराज नहीं करेगा, हमारे सिर्फ एक छोटे से कबीले से सरफराज नहीं करेगा, बल्कि उसका वादा है कि मैं तुझे दुनिया से और दुनिया की कौमों से ज्यादा सरफराज करूंगा। मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, तू शहर में भी मुबारक होगा, तू अपने खेत में भी मुबारक होगा, तेरी जमीन की पैदावार भी मुबारक होगी, तेरे चुपायों के बच्चे, गाय बैल की बढ़ती और भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे, तेरा टोकरा और तेरी कटौती मुबारक होगी, तू अंदर आते भी मुबारक होगा, तू बाहर जाते भी मुबारक होगा। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करेंगे उनके रूबरू उनको शिकस्त दिलाएगा, और अगर कोई दुश्मन आपके रास्ते में आएगा, आपके रास्ते की रुकावट बनेगा, तो खुदावन ये फरमाता है कि वो एक रास्ते से आएगा तो 7 रास्तों से भागकर वापस जाएगा। हालेलुया। खुदावन तुझे सरफराज करेगा, खुदावन तुझे बरकत बेबरकत देगा। लेकिन मेरे अजीजों, वह गौर होकर ये बात सुनने वाली है कि खुदावन ने अपनी बरकतों को हम पर उड़ेल दिया। खुदावन ने हमसे जो वादे किए हैं वो पूरे करने की कुदरत रखता है, और बेशक वो पूरे भी करता है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में रुकावट आती है गुनाह के सबब से, हमारी जिंदगी जो है वो पस्तहाली की तरफ जाती है, क्योंकि गुनाह जो है ये पस्तहाली को लेकर आता है, गुनाह जो है ये बीमारी को लेकर आता है, गुनाह गुर्बत को लेकर आता है, गुनाह इंसान को कमजोर कर देता है, गुनाह इंसान के जिस्म में बीमारियां लेकर आता है, और जब गुनाह आता है तो फिर मौत इंसान के हो जाता है। लेकिन हम लोग जो है ये जिंदगी के वारिस हैं, उसके मुकद्दस कौम है। उसने ये हमें फरमाया है कि तुम मुकद्दस कौम और शाही कहनों का फिरका हो और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास और मलकियत है। पहले तुम कोई उम्मत ना थी, मगर अब खुदावन की उम्मत हो। हम खुदावन की उम्मत है, खुदावन के बेटे और बेटियां हैं, और हमारा खुदा जो है वो पाक खुदा है, वो बदी को देख नहीं सकता, तो उसके बेटे और बेटियां नापाक नहीं हो सकती, उसके बेटे और बेटियां गुनाह आलूदा जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर हम उसके हकीकी बेटे और बेटियां हैं तो हमें गुनाह से पाक होना पड़ेगा, हमें अपनी बीमारियों से छूटना पड़ेगा, और ये गुनाह आलूदा जिस्म जो है, ये गुनाह आलूदा जो हमारी रूह है, उसको खुदावन के सामने रखना पड़ेगा, और खुदावन से कहना पड़ेगा, ऐ खुदावन मैं अपने गुनाह को मानता हूँ, जिस तरह मुकद्दस दाऊद अपने गुनाह को मानता है कि ऐ खुदावन मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकिरदारी को नहीं छुपाया। आज हमें जरूरत है कि अपने गुनाह का इकरार करें, अपने खुदावन से कहें, ऐ खुदावन मैं गुनाहगार हूँ, ऐ खुदावन मैंने तेरा गुनाह किया है, मैंने नाराजगी की है, तेरी हुक्म अदूली की है, तेरे शरीयत को मैंने तोड़ दिया है, क्योंकि जो गुनाह है ये शरीयत का मुखालिफ है, और जो शरीयत का मुखालिफ है इसका मतलब है कि वो खुदा का मुखालिफ है, और जो कोई गुनाह करता है वो खुदा से दुश्मनी रखता है। आज हमने खुदा से दुश्मनी नहीं रखी, बल्कि जो हमारे दुश्मन है, जो हमारा दुश्मन, हमारा जानी दुश्मन है, हमारी रूहों का दुश्मन है, उससे हमें होशियार होना है, और आज ये जानना है और इस बात पे तवज्जो करनी है कि ऐ खुदावन मैं अपने गुनाहों को छोड़ना चाहता हूँ, मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी बदी को, अपनी नाराजगी को तेरे सामने बिल्कुल खाली करता हूँ, इसको ज़ेर करता
तौबा की ज़रूरत है, हमें खुदा से मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है। अपने तमाम गुनाहों से जिनको करके हम परगिंदा हुए या जिनको करके हमारी ज़िंदगी में पस्त हाली आई, बीमारी आई, गुर्बत आई, आज उन गुनाहों को अपनी ज़िंदगी में से तरक करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा ने जो वादा हमसे किया है और रसूलों के अमाल 3 बाब और उसकी 19 आयत में के पास तौबा करो और रज्जू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावन के हजूर से ताज़गी के दिन आए। उस ताज़गी के दिनों को हासिल करने के लिए, खुशहाली और बरकत के दिनों को हासिल करने के लिए हमें अपने गुनाहों को छोड़ने की ज़रूरत है। हर किस्म के झूठ, फरेब, जिस्मानी कामों से, क्योंकि जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, नाराज़गी, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, नाच रंग और इनकी मानी खुदा का बंदा कहता है कि मैं पहले से जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अगर खुदा की बादशाही हमें हासिल करनी है, हमने फरदौस में जाना है, खुदा के बेटे और बेटियां होने का हमें हक मिला है, तो फिर हमें पर ये फर्ज है कि हम अपने गुनाहों को, ताकि खुदा हम पर रहम करे और हमारी ज़िंदगी में खुशहाली और बरकत आए। खुदा इसी थोड़े से कलाम पर मुझे और आप सबको बरकत अता फरमाए। हम पास्टर सुषमा शहरियार साहिबा के लिए जो है वो बरकत सलामती की दुआ करेंगे कि खुदावन ने उन्हें कलाम से नवाजा, और यकीनन आज के कलाम के वसीला से हमने बरकत पाई है। और अभी वक्त है कि हम प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो खुदाम की हजूरी में रखेंगे। और मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ जल्द मोड़ से पतरस खजान साहब जो कि बीमार हैं, सुमेरा नदीम जो फतेहगढ़ से बीमार हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। बहन एग्नस के लिए जो शुगर ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। बेटी अफजीबा के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदाम ने औलाद से नवाजा, और बाकी मानदा जो कमज़ोरी लाचारी है उसको खुदाम की हजूरी में रखेंगे। और इसी तरह कराची से रियासत मसीह के कारोबार के लिए दुआ करेंगे। उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रेड टेलीविज़न पर भेजी, और कराची से ही आतफ जान को भी खुदाम की हजूरी में रखेंगे। और इसी तरह आबाद भट्टी जो कामों से हैं और इस वक्त जो है वो इटली में मुकीम हैं, उन्होंने भी अपने कारोबार के लिए जो है वो दुआ के लिए कहा है, उसको भी हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे। और ख़ास तौर पे जो है वो पसरूर से जो बुजुर्ग बहन नसरीन और एल्डर अजमल साहब जो कि किताब लिख रहे हैं, और उससे ये आसानी पैदा होगी कि जो अनपढ़ लोग हैं वो बाइबल को पढ़ सकेंगे। उनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, खुदावंद ने ब्लेस करे, बरकत दे। और आइंदा दिनों में ग्रेस टेलीविज़न पर भी हम जो है वो एक बड़े प्रोजेक्ट में, जिसमें ख़ास तौर पे मिनॉरिटी से रिलेटेड जो ख़वातीन हैं, बेटियाँ हैं, जो लोग जो फैमिलीज इस्तादाद नहीं रखते, बेटियाँ घर में हैं, तो उनकी शादियों के लिए भी जो है वो इंतज़ामात के लिए सारे प्रोजेक्ट को जो है वो देख रहे हैं। उसके लिए भी हम खुदाम से दुआ करेंगे कि खुदाम अपना रहम, अपना फजल दे दे। और इसी तरह बाइबल कॉलेज के को भी खुदाम की हजूरी में रखेंगे कि ग्रेस टेलीविज़न पर ये भी काम जारी हो सारी हो। तो अभी हम सब चुकेंगे और हमारे दरमियान भगत सदीक साहिब जो है वो मौजूद हैं, जिनको खुदाम ने बड़ी बरकत दे रखी है। खुदाम अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, और खुदाम के नाम में कुदरत में रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। वो सामने आएंगे एल्डर शफीक साहब और सारी कबीना, एल्डर शमोन साहब, एल्डर लियाकत साहब, और इसी तरह पास्टर लोबन, पास्टर सुषमा शहरियार साहिबा, पूरी टीम यहाँ सामने आएंगे और हम इन सारे मकासद के लिए जो है वो दुआ करेंगे। तो अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करें, क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, खुदा का तख्त लगा हुआ है, खुदा की हजूरी मौजूद है। जिंदे आसमानी बाप, तारीफ की गरानियों से तेरा शुक्र करते हैं।
खुदावन तू जिंदा और जलाली मुकद्दस है, पाक और महीब खुदा है, तमाम गलतियों खताओं गुनाहों को माफ करने वाला खुदा है। तू अब्दी और जलाली है, रहम और फजल से भरा हुआ खुदा है। आज शाम तुझे मुबारक कहते हैं, वेलकम कहते हैं खुदावन तेरी पाक हाज़िरी में। खुदावन हम सब अपने आप को झुकाए हुए हैं, तेरा शुक्र करते हैं। आज शाम इस इबादत के लिए, इस रफाकत के लिए, तेरे आए हुए लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी मुरासूस के लिए, तेरी बेटी के लिए जिसने आज तेरे जिंदा कलाम को हम तक बयान किया है। आज का कलाम हम सब के लिए राई और आजादी का शुभ बन जाए। हमारी जिंदगियों को खुशहाल और बहाल करे ये कलाम खुदा यीशु। आज मैं दुआ करता हूँ तेरे बंदा के लिए, तेरे मनुष्यों के लिए, खुदा मास्टर आरिफ जुबैद के लिए, इसकी पूरी टीम के लिए, फैमिली के लिए, इसकी खिदमत के लिए खुदा यीशु तेरा शुक्र करते हैं। खुदा यीशु टेलीविजन के लिए तेरा शुक्र अदा करते चाहते हैं। ग्रेस टेलीविजन को खुदा और ज्यादा बरकत दे, ताकि तेरा कलाम इसके वसीला से दुनिया के कोने कोने तक जाए। खुदा यीशु मैं दुआ करता हूँ खुदावन, जितने लोगों की दरखास्तें तेरी पाक हजूरी में रखी गई है, इन पर नजरसानी करना, अपना चुनाव साफ करना। इनके मौजूदों में से हर तरह की बीमारी, कमजोरी, ब्लड प्रेशर, शुगर, खुदावन हर तरह की कमजोरी यीशु के नाम से दूर हो जाए। ये सब लोग आजाद हो जाए, तेरी गवाही का सबब बन जाए, क्योंकि तूने सबका फिदिया दिया है, तूने ने अपने खून से खरीदा। अबलीस बीमारी, कमजोरी, ब्लड प्रेशर, शुगर का इन पर कोई अख्तियार नहीं खुदा यीशु। ये तेरे खून खरीदे लोग हैं, इन पर तेरी बरकत बार बरकत चाहते हैं खुदा। जितनी जाने आज तेरी हजूरी में सिलेंडर किए हुए हैं, इन सब पर तेरी बरकत ठहर जाए खुदा। इबादत के शुरू से आखिर तक हमारा हाथी और रहनुमा बनना, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में बाल के बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह जलाल हमेशा तक तेरा ही होगा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस इबादत में हमारी सहायता की है। अब हम कलमा बरकत तेरे नाम से देते हैं, बाप और बेटे और रूह को दस के नाम से, आमीन आमीन।